So, good morning, everyone. As you all know, that we have started with the first chapter of your surveying one, in which we have seen the definition of surveying, which basically means that if you have to locate any object on the surface of the earth, that is done with the help of surveying, and the basic object behind surveying is to prepare a map. That is also we have studied that the main objective behind is to prepare a map, and there are various uses of maps which we have also studied, that it is basically used to prepare different type of maps, which can be a topographical map, it can be a cadastral map. This we have discussed in the previous class. Those who have not seen the previous class, they can go on my YouTube channel. Please watch the previous videos, and it can also be used in engineering work. So because we are in engineering, we also prepare some maps. So that can be related with your roadways, that can be related with your railways, that can be related to your irrigation channels, etc. So that is also where surveying helps you. It can be used for military maps where the army people makes their communications over there, and they prepare strategic planning over there. For that purpose, also surveying is also done. Then contour map has been done. Contour map is basically to find out the capacity of reservoir or to find out the best possible route for your roads and the railways. That is the purpose of behind contour map. To prepare geological map where we can find out the resources, where are the minerals, where the studies of faults and are done. Then we have also studied the classification of surveying. That the primary classification of surveying was the plain surveying and geodetic surveying. Plain surveying is what is that type of surveying in which we don't consider that the Earth's surface is sporadical in nature. We consider that Earth is a plain surface. Okay, and anything if you draw on the Earth line on the Earth's surface is considered to be a plane line, and a triangle you form is considered to be a plane triangle, and it is generally done for a work which is within less than 250 kilometers square. Okay, if it is less than 250 kilometers square, then it is considered to be a plain surveying. If it is more than 250 kilometers square, then it is considered to be a geodetic surveying. Okay. After that, second one is geodetic surveying. In this, we need to consider that the Earth's surface is sporadical in nature. Okay, and if we join a line on this surface of the Earth, it is considered to be a curved line, and also the triangle which is formed is a spherical triangle. It is not a plain triangle. Okay. After that, it is generally carried out for the area or the work where the limitation is going about 250 kilometers square. When it is above 250 kilometers square, then it is supposed to be your geodetic survey. Okay, and then secondary classification. This was also we are studying that surveying has been classified on different category based on instrument, based on the methods, based on the purpose for which surveying has been done. So based on the instrument, they are called as chain surveying, compass surveying. These are all the instruments which is used in surveying, theodolite surveying, which we are going to study in your surveying in the further chapters. Then there is photographic surveying. Then based on the method, this is triangulation. Then traverse. This we have all discussed in the previous classes. Please go and watch previous classes if you have not seen. Based on the object, we are studying about geological surveying. We can do surveying related to mine surveying. We can do about archaeological surveying. We can do military surveying. Based on the nature of the field, it is called as land surveying, marine surveying, astronomical surveying, and so on. And after that, there are principles which are very important principles that we have also studied in the previous classes. That what are the principles of surveying? In the first principle, which is the foremost, which is the most important, is called as the to work from wholly part. In this, we what we do that if we have to survey this area, we will divide what this whole area into number of parts. That means we will draw connected survey lines on the outer boundary. These are called as the main survey line, and then you will divide the in number of triangles. So what you are doing, you are first considering the whole part, then you are dividing into number of small parts. So it is to work from whole to part, and to locate a new station by at least two measurements from a fixed reference point. This is the second principle of surveying. So in this principle, what you are doing is that suppose you have a reference point A. Okay. Suppose you have a reference point B. Okay. These are the two fixed points. Now you are taking marking a new point C with the help of these two points. So first you will do what? You will measure A from here, you will measure B from here, and with the help of these 2 point reference, you will measure a point C. So what you have done, you have located a new station by at least two measurements from a fixed reference point. So the fixed reference points are what? A and B. The chances of errors are more in the second case than in the first case, because what is happening if you have made any error in measurement of this distance from here to here, from O to A, if you have make any error in measurement, this will, because with this reference
you are measuring a new point. So if there is any error in this measurement, there will be that will be reflected in this point also, and then you are establishing other points. Then you're establishing another point. So basically, the error gets accumulated in this type of case. So this method is not accurate as compared to your first method, that is to work from whole method. So accuracy is more in case of your work from whole method. Okay, this is all the theoretical part which we have studied. This is all the theoretical part. You can uh, uh, stop the video and try to read all this. After that, okay, now we'll start with the first type of serving which we have studied, which we have seen in the classification, that is your chain and cross staff serving. This is very important because this is uh, there is two part in this. That is, one is related to a chain and cross staff, and the second one is related to your compass. So first we'll start with the chain. Okay, so basically chain is used for what? Linear measurement. So in which linear measurement means what? If you want to measure 2 points from, suppose this is point A, this is point B, you are measuring with the help of chain. So what you are doing nothing but you measuring a linear, you are doing a linear measurement. Okay, with the help of chain. So it is not necessary whenever it is mentioning chain, that means it is only using a chain. It can also be a tape. टेप भी हो सकता है, वहाँ पे चेन भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चेन बोला है तो चेन ही है, टेप भी हो सकती है. ओके, so chain surveying is a type of surveying in which only linear measurements are taken in the field. ओके, अब इसमें देखो अपन कोई एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं ले रहे, अपन सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन. ओके, आफ्टर दैट the linear measurements are carried out for finding out the measurement in horizontal plane. So basically we are working on the horizontal plane. अगर आप distance measure कर रहे हो तो आप horizontal plane में measure कर रहे हो. There are various methods employed for making linear measurements. So there are various methods. So one is your direct method, direct measurement. In this case, in case of direct measurement, the distance are actually measured on the ground with the help of a chain or tape. Okay, डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या कर रहे हैं, अपन सीधे सीधे टेप और चेन लेके जा रहे हैं और वहां से उसको डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं. ठीक है, then measurement by means of optical means. So second one is your, in this method no direct measurements are done, but the observations are taken with the help of telescope or a leveling staff, and the values are substituted in the standard formula to obtain the horizontal distance, example tachometry or triangulation. अब इसमें क्या हो रहा है सेकेंड मेथड में, इसमें अपन कोई भी टेप और चेन यूज नहीं कर रहे. इसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं, टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब टेलीस्कोप में क्या होता है, ऐसा एक डायफ्राम बना होता है. जब भी आप टेलीस्कोप में देखोगे तो एक डायफ्राम दिखेंगे, एक सेंटर रीडिंग दिखेंगे, एक टॉप एयर रीडिंग दिखेंगे, एक बॉटम एयर रीडिंग. अब एक लेवलिंग स्टाफ होता है, एक स्केल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है. तो जैसे ही आप टेलीस्कोप में स्केल टाइप के इंस्ट्रूमेंट पे देखोगे तो यहाँ पे अपने को 3 रीडिंग मिलेंगे, टॉप सेंटर बॉटम. ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन को एक फार्मूला दिया जाता है टैकोमेट्रिक सर्वेइंग का. ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला है विच इज कॉल्ड एज KS प्लस सी. ठीक है, तो ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की जाती है और उससे अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज योर मेजरमेंट ऑप्टिकल मीन्स. ये अभी आपके पार्ट का नहीं है बिकॉज दिस इज इन योर सर्वेइंग टू, तब अपन ये देखेंगे. बस आप ये समझ लो, अपन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल मीन्स ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल है. ठीक है, लास्ट मेथड कौन सा है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेथड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो जनरली EDMs वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर. आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपके जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जैवलिन थ्रो होता है, जहाँ पे आपकी शॉर्ट पुट होता है. ठीक है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सडनली आप जैसे ही आप जैवलिन थ्रो वो फेंकता है एथलीट, उससे कुछ ही देर में वो जो डिस्टेंस बता रहे थे जितना डिस्टेंस पाया, तो वहाँ पे वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, EDM यूज़ कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर में क्या होता है, जिस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस पता करना है वहाँ पे क्या किया जाता है, रिफ्लेक्टर रखा जाता है, और आपको जहाँ से मेजर करना है वहाँ पे आपका EDM रखेंगे. EDM से आपका क्या होगा, एक वेव प्रोपोगेट होती है, वो रिफ्लेक्टर से जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस होती है. तो कितना टाइम ट्रैवल होने में लगा उस वेव को आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक का, उस बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है और उस बेसिस पे वो आपको डिस्टेंस मेजर करके देता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक मेथड. ओके, अब देखो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं. तो अपन मेथड्स ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट देख लेते हैं. चेनिंग करने में अपने को कौन से इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करना पड़ेगा, चेनिंग करते टाइम अपने को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो अपन देख लेते हैं. इन द मेथड ऑफ चेनिंग to denote horizontal distance, either a chain or tape is used for making direct measurement is less precise than a tape. ठीक है, अब देखो चेन, या तो चेन यूज करना है लीनियर मेजरमेंट के लिए, या तो आपको टेप यूज करना है. ठीक है,
चेन जनरली उतनी एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू टेप। टेप ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं अपन, चेन और टेप तो यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। एरोज यूज़ होते हैं, पेग्स यूज़ होते हैं, रेंजिंग रॉड होती है, प्लम बॉब होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती क्या है अपन एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली अपन चेन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। चेन क्या होती है, जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील। एक ऐसी गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की होती है, ठीक है, ऑफ 4 mm इन डायमीटर, ठीक है। इट इज जनरली 4 mm इन डायमीटर, 4 mm का डायमीटर है, ठीक है। अभी अगर अपन फिजिकल क्लासेस होती थी तो मैं आपको चेन दिखाता था, ठीक है। जब भी हम नेक्स्ट क्लास होंगी तो मैं आपको उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स की फोटोज दिखा दूंगा एक बार, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जनरली गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की होती है, स्टील की होती है, 4 mm का इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। द लिंक्स आर बेंट इनटू रिंग। लिंक्स जो होती है वो क्या होती है, जॉइन होती है, ऐसी लिंक्स टाइप की होती है उसमें, इस टाइप की होती है, ठीक है। ऐसे लिंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। द एंड ऑफ द चेन इज प्रोवाइडेड विद द ब्रास हैंडल। और चेन की जो एंड पे होता है वो क्या होता है, एक ब्रास हैंडल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अ, वो ब्रास हैंडल अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी, ठीक है। फर्स्टली इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। मैंने इसका डायग्राम निकाल लिया हो, मैं इसका डायग्राम भी आपको शो कर दूंगा। अब एक क्या बोला है, जनरली क्या है आपकी माइल्ड स्टील, गार्बनाइज माइल्ड स्टील की है, 4 mm जो उसका डायमीटर है। लिंक्स कैसे बेंड किए जाते हैं, ठीक है, सो दैट दे फॉर्म अ रिंग, ठीक है। उसके बाद में एंड में क्या होता है, ब्रास के हैंडल्स होते हैं ऑन द बोथ द साइड, ठीक है। द ब्रास हैंडल इज जॉइंड विद द चेन विद द सुलेवेट जॉइंट, और द सुलेट जॉइंट बोलते हैं उसको। एंड generally it is used to what, pull the chain on the ground. Next one is your length of the chain is included with both the angles। ऐसा नहीं है कि जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है वहीं से आपके हैंडल भी जो है वो आपके चेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ आपको, सो दैट क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो, आप दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी चेन है, ये आपके लिंक्स है जो बेंड किए है रिंग में, ठीक है। 4 mm का गैल्वेनाइज माइल्ड स्टील की आपकी ये चेन है। एंड पे देखेंगे आप क्या दिया हुआ है, ब्रास का हैंडल है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से, मतलब आपका जीरो वाला जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ से रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गिनना है। एक जो लिंक होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ये आपको पता लगना चाहिए, 20 सेंटीमीटर का एक आपका लिंक होता है। और क्या बोल रहा है, इससे थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, at every 1 meter marks the chain is provided with a brass ring to indicate the complete meter, ठीक है। हर 1 मीटर पे क्या देगा, एक ब्रास का रिंग रहेगा। तो हर एक 1 मीटर पे क्या होगा, एक ब्रास का ऐसा छोटा सा रिंग दिया हुआ है, सो दैट वो इंडिकेट करता है कि आपका 1 मीटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट ब्रास टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 5 मीटर ऑफ द चेन। हाँ, अब हर 5 मीटर पे भी आपकी टैलीज होंगी, ऐसी टैलीज देती है ब्रास की, कि वो इंडिकेट करता है कि 5 मीटर आपका खत्म हो गया। तो ये पहली टैली हो गई, ये 10 मीटर की टैली हो गई, ये 15 मीटर की टैली हो गई, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। अब सपोज जनरली चेन अपनी अपनी कितने मीटर की लेंथ में अवेलेबल, 20 मीटर की लेंथ में अवेलेबल है, 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल, ठीक है। तो सपोज 20 मीटर की चेन है, तो अगर यहाँ से 5 मीटर है और यहाँ से जो 5 मीटर है, वो दोनों जो टैली रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक ही जैसी रहेंगी। सपोज ये शेप की है, तो यहाँ पर भी यही शेप की रहेंगी, यहाँ पर भी यही शेप की रहेंगी, ठीक है। बीच में क्या आएंगी, आपकी 10 की आएंगी, ठीक है। तो 10 की ये सपोज ये वाली शेप की रहेंगी। तो ऐसा जनरली उसमें टैलीज प्रोवाइडेड होती है हर 5-5 मीटर पे, ठीक है। 5 मीटर पे होती है। तो दो केसेस में पॉसिबल है, 20 मीटर की चेन भी है अपने पास, 30 मीटर की भी चेन है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ईच टैली हैज डिफरेंट शेप विच इंडिकेट्स आइदर 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। हाँ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर टैली का जो शेप है वो अलग रहने वाला है। 5 मीटर वाली जो टैली है लेफ्ट और राइट में वो सेम रहेंगी। 10 मीटर वाली जो टैली है लेफ्ट और राइट में वो सेम रहेंगी। 15 मीटर वाली जो टैली है, 15 मीटर वाली तो सिंगल ही रहेंगी, बस 30 मीटर अपनी मैक्सिमम है, वो साइज उसका जो शेप रहेंगे वो सेम रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम एनी एंड ऑफ द चेन। द चेन्स आर अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 20 to 30 मीटर। 20 से 30 मीटर की लेंथ में अपने पास अवेलेबल है। द चेन कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स इन केस ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ ईच। मैंने अभी आपको बताया 20 मीटर की चेन है, तो 20 सेंटीमीटर का एक लिंक है, तो कितनी हो जाएंगी, 100 लिंक हो गई। सिमिलरली अगर 30 मीटर की है, 20 सेंटीमीटर का एक लिंक है, तो कितनी लिंक्स हो गई, 150 लिंक हो गई, ठीक है। इस तरीके से वो चेन को निकाला जाता है, ठीक है। चेन अभी बता दिया मैंने आपको क्या है, गैल्वेनाइज्ड माइल्स। एक बार फिर से रिवीजन करने से, गैल्वेनाइज्ड माइल्स की है, 4 mm की उसकी डायमीटर है, ठीक है। सेकेंड, लिंक्स उसके जो बेंड किए जाते हैं, रिंग फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ब्रास हैंडल प्रोवाइड किए जाते हैं एट दी एंड,
ठीक है, मेजरमेंट्स कहाँ से किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी ब्रास हैंडल, और आपकी जो जॉइंट होता है उसको स्विवेट जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, एट एवरी 1 मीटर देर इज अ ब्रास रिंग प्रोवाइडेड, ये हर 1 मीटर कंप्लीट होने पे एक ब्रास का रिंग होता है। एट एवरी 5 मीटर देर इज अ टैली। ठीक है, और ये जो टाली का शेप है वो क्या रहेगा, एक दूसरे से अलग रहेगा। 5 मीटर वाली टाली अलग रहेंगी, 10 मीटर वाली टाली अलग शेप की रहेंगी, 15 मीटर वाली अलग शेप की रहेंगी। ठीक है, चेन की जो है लेंथ कितनी अवेलेबल है, 20 मीटर में अवेलेबल है, 30 मीटर की अवेलेबल है। एक लिंक जो होती है 20 सेंटीमीटर की होती है, उस हिसाब से 20 मीटर तो 20 मीटर की चेन में कितनी लिंक होगी, 100 लिंक होगी, और 30 मीटर की चेन में होगी 150 लिंक। ठीक है, आफ्टर दैट टेस्टिंग ऑफ चेन। तो चेन को यूज करने के पहले उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है वेदर कि जितना वो 20 मीटर बोल रहा है तो वो 20 मीटर एग्जैक्टली है कि नहीं। 30 मीटर बोल रहा है, 30 मीटर एग्जैक्टली है कि नहीं, वो अपने को चेक करना पड़ता है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द चेनिंग वर्क, the measure to measure the horizontal distance, it is necessary to ensure that the chain is correct. Okay, कोई भी काम चालू करने के पहले अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो चेन का मेजरमेंट करना जरूरी है कि भाई चेन आपकी 20 मीटर की है कि नहीं है। ठीक है, a chain may be either tested with reference to a standard chain or with the reference of a steel tape। तो अब अपन मेजर कैसे करेंगे चेन को, तो जनरली कैसे चेन को मेजर किया जाता है कि कोई स्टील का टेप लो, उसके रेफरेंस से मेजर कर लो, या फिर तो कोई स्टैंडर्ड चेन मतलब क्या है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, वो चेन के रेफरेंस से उसको अपन क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। या फिर समटाइम्स स्टैंडर्ड गेज भी यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड गेज मतलब क्या होता है, ऐसे दो फिगर्स है उसको फिक्स किया जाता है जो एग्जैक्टली कितने मीटर की डिस्टेंस पर, 20 मीटर की डिस्टेंस पर होंगी या फिर 30 मीटर की डिस्टेंस पर होंगी। चेन को अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे, चेन को अपन यहाँ पे फिक्स करेंगे, एग्जैक्टली 20 मीटर आ रही है कि नहीं आ रही वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, while testing the chain, if the found that the chain is either too long or too short, then the following adjustment shall be made। if the chain is too long, the following adjustment can be carried out। अगर चेन बड़ी आ रही है, 20 मीटर से ज़्यादा आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, द ओपन अप जॉइंट्स आर क्लोज बाय द हैमर। तो सपोज वो जो जॉइंट ओपन हो गए हैं उनको क्या करेंगे, हैमर से क्लोज कर देंगे। ठीक है, सेकेंड वन, द रिंग एट द एंड ऑफ मे बी टर्न इनटू एन ओवल शेप। तो आपने देखा होगा कि मैंने फोटो में बताया था, जो रिंग्स होती है एकदम परफेक्ट सर्कुलर शेप में होती है। कई बार खींचने की वजह से क्या होती है, वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस अपने को क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर शेप में, राउंड शेप में उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सम ऑफ द लिंक्स मे बी रिड्यूस, सम ऑफ द लिंक मे बी रिमूव टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द चेन। अगर बहुत ही ज्यादा खिंच गई है तो क्या करना पड़ेगा, एक आध लिंक को क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें है करना पड़ेगा अगर चेन आपकी लंबी आ रही है तो, 20 मीटर से बड़ी आ रही है या फिर 30 मीटर से बड़ी आ रही है तो। अगर छोटी आ रही है तो क्या करोगे, द बेंट अप बार्स आर मेड स्ट्रेट। तो अगर कोई बार बेंट हो गया है, कोई लिंक बेंट हो गई है तो उसको अपन क्या करेंगे, खोल देंगे। सम स्मॉलर साइज रिंग्स आर रिप्लेस। तो अगर कोई रिंग का साइज छोटा हो गया है तो उसको अपन क्या करेंगे, रिप्लेस बाय लार्जर साइज रिंग, उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपन रिंग से। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, ये दो चीजें हैं जो अपन क्या करेंगे, इन केस ऑफ टू शॉर्ट आ रहा है तब अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये टू लॉन्ग के लिए है, दिस इज फॉर टू शॉर्ट। अब टेप्स, उसके बारे में बताया मैंने आपको। चेन लीनियर मेजरमेंट करने के लिए या तो चेन यूज करेंगे या तो टेप यूज करेंगे। अब टेप जो है वो बहुत सारी टाइप्स की होती है, क्लॉथ की होती है, लीनियन टेप होती है, मेटालिक टेप होती है, ठीक है, स्टील टेप होती है, इन्वर टेप होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेप्स अवेलेबल है। इसके बारे में उतना अपने को डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप लोग इसके बारे में पढ़ के रखो कि आपकी क्लॉथ टेप क्या होती है, मेटालिक टेप क्या होती है, स्टील टेप क्या होती है, इन्वर टेप क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ अपन चेनिंग ऑपरेशन के लिए यूज करने वाले लीनियर मेजरमेंट, उसको बोलते हैं पेग्स। ठीक है, पेग्स जनरली क्या होता है कि वुडन शेप का, अपन उसको बोलते हैं गुट्टी, गुट्टी भी बोला जाता है। आप लोगों ने फील्ड पे सुना होगा, गुट्टी बोला जाता है। जनरली कहाँ पे स्टेशन मार्क करने के लिए यूज किया जाता है, वुडन पेग होता है छोटा सा। ठीक है, ये गुट्टी अपन क्या करेंगे, वुडन पेग्स टिम्बर की होती है या तो कई बार स्टील की भी होती है। अब पेग्स जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, सपोज ये आपके मेन पॉइंट है ए और बी, तो ए पे अपन क्या करेंगे, एक वुडन का पैक यूज करेंगे, वहाँ पर बी पे भी अपन क्या करेंगे, वुडन का पैक यूज करेंगे। सपोज बीच में भी और कुछ पॉइंट है, लेकिन मेन स्टेशन जो पॉइंट कौन से आपके, ए वाला है और बी वाला पॉइंट है। जो मेन स्टेशन पॉइंट है उनको अपन किसके हेल्प से फिक्स करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैक्स। ठीक है, पैक्स आर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड आर ड्राइवन इनटू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो हैमर की हेल्प से उसको ग्राउंड में क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, गाड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एरो।
अब ये एरो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ, जब भी चेनिंग कर रहे हैं अपन, जब भी चेनिंग कर रहे हैं तो अब हो सकता है कि आप जो मेजरमेंट्स कर रहे हो, देखो अभी मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि ये ए और बी का जो डिस्टेंस है सपोज ये 150 मीटर का है, ये 200 मीटर का है, ठीक है, 200 मीटर का है। तो आप अब यहाँ पे आपको पता चलेंगे कि अपने पास अपन जो चेन यूज़ कर रहे हो तो 20 मीटर की है, तो अपने को चेन कम से कम कितने बार यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ेगा। 20 डिवाइडेड बाई 200, तो कितना हो जाएगा, 10 बार कम से कम चेन यूज़ होंगी। तो 10 बार चेन यूज़ होंगी तो अपन क्या करेंगे, जब भी एक बार चेन आपकी कंप्लीट हो जाती है, एक कंप्लीट लेंथ ऑफ चेन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, एक एरो को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ही फिर आपने फिर यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट की, सपोज यहाँ पे आपकी चेन खत्म हो गई, अगेन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक एरो फिक्स कर लेंगे, सो दैट आपको ये इंडिकेशन मिलते रहे कि यहाँ पे अपनी चेन कंप्लीट होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे जो कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एरो गिन लोगे। आपने गिना, स्टार्टिंग मेजरमेंट चालू करा, यहाँ पे एक एरो, दो एरो, ठीक है, आपने गिना कंटिन्यू 10 एरोज हो गए, 10 एरोज मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 20, ठीक है। तो 10 इंटू 20 करें तो डायरेक्टली कितना मिल जाएंगे, 200, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, 200। तो इसीलिए अपन ये एरो को यूज करते हैं, जहाँ पर भी आपकी एक चेन लेंथ कंप्लीट हो रही है वहाँ पे ग्राउंड में एक एरो इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक मेटल का ऐसा छोटा सा वायर होता है, 4 mm इन डायमीटर, ठीक है, जिसको ऐसे सर्कुलर ओवल शेप में रखा जाता है और इसको ग्राउंड में आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आरओ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि काय के लिए यूज होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, दिखता कैसे ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट रेंजिंग रॉड, अब चेनिंग में कई बार क्या होता है, आपको सपोज दो पॉइंट्स हैं, काफी दूर पे है, ए और बी, ठीक है। अब उसके लिए अपने को कई बार क्या करना पड़ता है, रेंजिंग भी करना पड़ता है। रेंजिंग मतलब क्या होता है, इज टू स्टैब्लिश एन इंटरमीडिएट पॉइंट। अब देखो ए और बी जो डिस्टेंस है, आप क्या करोगे, चेन को अगर आपने यहाँ पे लेके गया, आपने मेजर किया है यहाँ से यहाँ तक का, हो सकता है आपने चेन को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पे मेजर कर लिया, क्योंकि आपको अंदाजे से ऐसा लग रहा है कि वो सीधा है, ठीक है। हो सकता है आपने उसको ऐसा टेढ़ा मेजर कर लिया हो सकता है आपने उसको ऐसा मेजर कर लिया हो, सीधा सीधा, और अल्टीमेटली आपने ज्वाइन कर ली। इससे आपको क्या मिल रहा है कि आपको डिस्टेंस तो मिल रहा है लेकिन एक्यूरेसी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो एक्यूरेसी आने के लिए परफेक्टली आपका जो पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बीच में कुछ दो पॉइंट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रेंजिंग करना पड़ता है। और रेंजिंग करने के लिए अपने को काय की जरूरत पड़ेगी, रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ेगी। तो ये रेंजिंग रॉड है आपकी मेटल की, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होता है 2 से 3 मीटर की होती है, ठीक है, मेटल की होती है। The ranging rods are circular section and generally 2 to 3 meter in length. The rods are painted with alternate bands of black or white or red and white color in length of 20 centimeter so that they can be seen at a longer distance at the time of ranging. तो 2 से 3 मीटर की आपकी है, ठीक है, मेटल की रॉड होती है जो जनरली ऑल्टरनेट कलर्स में ब्लैक एंड वाइट या फिर ब्लैक एंड रेड या रेड एंड ब्लैक, रेड एंड वाइट में उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, सो दैट इसकी जो विजिबिलिटी है वो दूर तक रहे, क्योंकि रेंजिंग अपने को दूर के लिए करना है, ठीक है। समटाइम फॉर बेटर विजिबिलिटी फ्लैग्स भी, कई बार फ्लैग्स लगाए जाते हैं ऊपर में उसके। एंड आयरन शू इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द रेंजिंग रॉड फॉर फिक्सिंग इट फर्मली इनटू द ग्राउंड। नीचे में कैसा एक आयरन शू है, सो दैट वो ग्राउंड के अंदर गड़ जाए आसानी से, उसके लिए अपन अपन रेंजिंग रॉड यूज कर रहे हैं, क्लियर है। लास्ट वन इज द प्लम बॉब। प्लम बॉब का के लिए यूज करते हैं, प्लम बॉब इज यूज टू ट्रांसफर द पॉइंट्स ऑन टू द ग्राउंड। क्या होता है, अब देखो अपन मैक्सिमम टाइम चेनिंग कर रहे हैं अपन, कई बार हो सकता है कि आपका जो ग्राउंड का पॉइंट है वो सपोज नीचे है, आप मेजरमेंट कम कर रहे हो ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो यहाँ पे ग्राउंड के पॉइंट को नीचे की तरफ लाने के लिए ये प्लम्बर को यूज किया जाता है, ठीक है। आई थिंक इतनी ही चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये 5 इंस्ट्रूमेंट है जो चेनिंग ऑपरेशन के लिए काम में आते हैं, ठीक है। चेन और टेप, मेटालिक सॉरी, ये वाला कहाँ गया, हाँ, चेन और टेप। सेकंड इज योर पेग्स। चेन और टेप अपन लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पेग्स का के लिए यूज कर रहे हैं मेन स्टेशन पॉइंट को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट एरोज, जहाँ पर भी एक कंप्लीट चेन की लेंथ कंप्लीट हो जा रही है वहाँ पे एरो यूज कर रहे हैं। रेंजिंग रॉड का के लिए यूज कर रहे हैं, जो आपकी जो पॉइंट्स है, जो आपकी लाइन है उसको स्ट्रेट बनाने के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज किया जाता है। और कोई भी पॉइंट जो एयर में है उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है, उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, प्लम्बर, ठीक है। अब
नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपके न्यूमेरिकल्स, जो चेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करना है चेन्स के लिए, देखो अब देखो क्या हो रहा है। चेन एंड टेप करेक्शन, करेक्शन अप्लाई टू द इनकरेक्टेड लेंथ। सपोज आपने क्या किया, चेन यूज किया, ठीक है, मेजरमेंट आपने स्टार्ट किया, मेजरमेंट स्टार्ट करने के बाद अपने को क्या पता चल रहा है, आपने दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता निकाल लिया, निकालने के बाद आपको पता चल रहा है कि चेन की जो लेंथ थी वो परफेक्टली 20 मीटर नहीं है, या फिर 30 मीटर नहीं है, इट इज आइदर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। तो ऐसे टाइम पे अपने को कौन से करेक्शन अप्लाई करना पड़ेंगे, तो ये देख लो यहाँ पे, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, इसको टी एल से मेजर किया जाता है, इक्वल्स टू व्हाट, एल डैश बाय एल इंटू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, एल डैश इज नथिंग बट योर ट्रू लेंथ प्लस माइनस एरर। तो जो भी आपकी ट्रू लेंथ रहेंगी उसमें अपन क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे एरर। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव साइन कब यूज करना है, एल आपका जो है वो टोटल लेंथ है, 20 मीटर की रहेंगी चेन तो 20 मीटर यूज करेंगे, 30 मीटर रहेंगी तो 30 मीटर की यूज करेंगे। ठीक है, एल इज द स्टैंडर्ड और द ट्रू लेंथ ऑफ द चेन। पॉजिटिव साइन कब यूज करेंगे, व्हेन द चेन और द टेप इज टू लॉन्ग, जब बड़ी है तब प्लस पॉजिटिव साइन यूज करना है, नेगेटिव साइन कब यूज करना है, व्हेन इट इज टू शॉर्ट। ओके, अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सो दैट वो आपको इजीली और समझ में आ जाए। The distance between the two stations was 1200 meter. When the measured with a 20-meter chain, the same distance which was measured with a 30-meter chain was found to be 1195. अब देखो एक ही डिस्टेंस को मेजर किया गया है, पहले 1200 मीटर आ रहा था विद द हेल्प ऑफ 20 मीटर चेन, अब उसी डिस्टेंस को जब 30 मीटर की चेन से मेजर किए तो कितना डिस्टेंस आ रहा है उसका, 1195। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो 20 मीटर चेन वॉज 0.05 मीटर टू लॉन्ग। अब बाद में पता चले कितना, 20 मीटर वाली जो चेन थी वो कितनी थी, 0.05 टू लॉन्ग है। व्हाट वाज द एरर इन 30 मीटर चेन, तो 30 मीटर चेन में क्या एरर आएगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो पहला केस कंसिडर करते, लेटेस्ट कंसिडर 20 मीटर चेन। एल कितना हो गया, स्टैंडर्ड लेंथ 20 मीटर, एल डैश क्या हो गया, मैंने बताया था आपको, जो भी लेंथ रहेगी चेन की उसमें प्लस या माइनस एरर करना है, टू लॉन्ग आया तो प्लस करेंगे, 20 प्लस 0.05 तो कितना हो गया 20.05। मेजर्ड लेंथ कितनी है, 1200 मीटर, तो ट्रू लेंथ कितना हो जाएगा, एल डैश बाय एल इंटू मेजर्ड लेंथ, तो एल डैश कितना होगी 20.05 बाई 20 इंटू ये मेजर्ड लेंथ दिस इज 1200, सो टोटल लेंथ ट्रू लेंथ आ रहा है आपका 1203। अब चेन में 30 मीटर की चेन में जो एरर है वो निकालना है, देखो बिकॉज सेम डिस्टेंस मेजर किया गया था तो ये करेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे, अपन ये जो वैल्यू ट्रू लेंथ थी वो यही यूज करेंगे, बिकॉज दोनों भी सेम डिस्टेंस मेजर किए तो यही आंसर आना चाहिए। तो टी एल इक्वल टू वर्ड एल डैश, अब देखो एरर निकालना है तो 30 प्लस ई, अभी अपन अज्यूम कर ले रहे कि वो पॉजिटिव है, 30 प्लस ई इक्वल टू वर्ड डिवाइडेड बाई 30 इंटू इससे, इसमें जो मेजर्ड लेंथ थी वो कितनी थी 1195। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एल डैश कितना आ रहा है 30.20, दैट मीन एल इज ग्रेटर देन एल, मतलब 30.2 आ रहा है, दैट मीन्स क्या आने वाला है, आपका जो एरर है, आपका जो एरर है वो कितना आ रहा है 30.20 का आ रहा है, मतलब चेन से आपका बड़ा आ रहा है, तो दैट मीन्स द चेन इज टू लॉन्ग। कितने मीटर से लॉन्ग है, तो 30 माइनस 0.20, 30 मतलब यहाँ पे 30.20, जो भी एल डैश आया उससे अपन क्या करेंगे 30 मीटर को माइनस कर लो, तो पॉजिटिव क्या आ जाएंगे 0.20। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरर कैलकुलेट कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। लाइन वॉज मेजर्ड बाय अ 20 मीटर चेन विच वॉज एक्यूरेट बिफोर स्टार्टिंग द डेज वर्क, मतलब एक लाइन को मेजर किया गया था 20 मीटर की चेन की, और वो एक्यूरेट थी जब दिन का काम स्टार्ट किया। आफ्टर चेनिंग सम 900 मीटर द चेन वॉज फाउंड टू बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जब 900 मीटर मेजर किए तो अपन को चेन मेजर किए वापस, तो कितना बता रहा है 6 सेंटीमीटर बढ़ गया है। After chaining a total distance of 1573, the chain was found to be 14 centimeter too long. जब टोटल डिस्टेंस 1575 तक पहुंचे, चेन में कितना एरर आ गया था 14 सेंटीमीटर का एरर आ गया था। द ट्रू डिस्टेंस ऑफ द लाइन, अब अपन कैसे निकालेंगे ट्रू डिस्टेंस, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दो केस में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज देखो पहला मेजरमेंट 900 तक किया गया है, दूसरा मेजरमेंट 1575 तक किया गया। ठीक है, तो पहले वाले में देखो एल क्या रहेगा आपका 20 मीटर, बिकॉज चेन की लेंथ तो कितनी है 20 मीटर। एल डैश जो है वो कैसे निकालेंगे, अब देखो इनिशियली एरर कितना था 0, लाइन वॉज मेजर्ड बाय 20 सेंटीमीटर चेन,
20 मीटर चेन विच वॉज एक्यूरेट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द डे। मतलब पहले कितना एरर था, 0। फिर 900 मीटर मेजर किया तो एरर कितना आया, 6 सेंटीमीटर का, मतलब 0.06। इन दोनों को क्या करने का, एवरेज ले लो, ये हो जाएगा आपका एल डैश। तो कितना हो गया, 20 प्लस ये 0 प्लस 0.06/2, तो कितना आ रहा है, 20.03 आता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, ट्रू लेंथ निकाल लेंगे, एल डैश बाई एल इंटू मेजर्ड लेंथ। एल डैश कितना होगी, 20.03 डिवाइडेड बाई 20 इंटू मेजर्ड लेंथ, कितना आ गया, 901.35 मीटर। अब सेकेंड केस पे आते हैं। तो पहला वाले में जो करेक्शन आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए, 901.35 आना चाहिए। सेकेंड वाले में देख लेते हैं। द चेन वॉज फाउंड टू बी, सॉरी कहाँ से आ रहा, आफ्टर चेनिंग टोटल डिस्टेंस ऑफ 1575 द चेन वॉज फाउंड टू बी 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो, जब अपन ने ये डिस्टेंस तक पहुंचे तो इनिशियली एरर कितना था, पहले 6 सेंटीमीटर का एरर ऑलरेडी था 900 मीटर पे, बिकॉज 900 से अपन यहाँ तक आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होने वाला है, एल तो बीसी रहने वाला है, एल डैश क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा 20 प्लस 0.06 प्लस 0.14 डिवाइड बाई, एवरेज निकालना है आपको। तो इनिशियली एरर कितना था, 6 सेंटीमीटर का, और आखिरी में एरर हुआ 14 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देना, दैट विल गिव यू एल डैश। तो यहाँ से एल डैश निकल जा रहा है 20.1 बराबर। अब देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला अपने को क्या यूज करना है, ये ट्रू लेंथ का फॉर्मूला यूज करना है, एल डैश बाई एल इंटू मेजर्ड लेंथ। एल तो ये, एल डैश तो ये हो गया 20.1 बराबर, एल हो गया 20। अब मेजर्ड लेंथ क्या आएगा, ये देखो, मेजर्ड लेंथ क्या आएगा आपका, इनिशियली आपने 900 मेजर कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर्ड लेंथ 1575 डायरेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज 900 तक तो कवर हो चुका है। 900 में से अपने को क्या करना पड़ेगा, 1575 में से 900 माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी द मेजर्ड लेंथ। वो कितना हो जाएगा, 1575 माइनस 900। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ट्रू लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 678.375। तो अगर टोटल लेंथ निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वाले में आ रहा था आपका 901.35, सेकेंड वाले में आ रहा है 678.375, तो टोटल आ गया 1579.725। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू इट।